Subscribe and click the bell icon for television updates. Yeah, but I thought everyone was be dressed in Met Gala and see, I've been a fan of Rohit's work for a very long time now, and I have been a bigger fan of his grandmother. If you would, not many people know, his grandmother is one of the most prolific writers. Yeah, Mahadevi Verma, and थोड़ा सा है ऐसे connection मेरे को बड़ा emotionally लगता है. But I think there's a lot of creativity and there's a lot of believability in his clothes. What he does with his clothes is that although he might go not normal, but they're still wearable and they're still something that you can be flaunting and saying it's a Rohit. क्या तू बिग बॉस के लिए फॉलो करने आए यहाँ पर या रोहित का कैसे क्या देखो कितनी गलत बात है यार ये अच्छा नहीं नहीं यार वहाँ बहुत सारे मास्टर्स हैं इतने सारे माइंड्स हैं तो अब ज़रूरत नहीं है हाँ ये मुझे काफ़ी लोग अच्छे लगते हैं उसमें अदू देयर इज निमृत प्रियंका दोनों वॉर पे हैं पर देना इससे फन क्या चीज़ ब्लैक ऑफ फ्यूचर वाइट ऑफ फ्यूचर आएगा उसके बाद है ना रेड ऑफ फ्यूचर भी आ सकता है पार्थ का गाना नहीं सुना मैंने तो मेरा गाना सुनना सुपर और कुछ उसके एस ऑफ स्पेस नहीं करूँगा मैं क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ ना बच्चों के साथ और फिर उसके बाद क्या होता है वो सुनते नहीं हैं घर से बाहर निकलने के बाद बहुत शैतानियाँ करते हैं फिर आपको लगता है कि आप किसी तरह से हेल्प करो वो होता नहीं है देन यू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड दैट बिकॉज यू वर्क सो हार्ड on them for 3 months or whatever. So I don't think it's and I need to live my life also. Yeah? And what's oh, this class of 2020 finale season supposed to come. There's something for Woot happening and then there's something else happening. जब होगा तो वो लोग announce करेंगे ना. Do we see the No, I am not going to speak. Yeah, class. So I'm not going to be doing on-screen anything for this year for sure because it has so much work that I'm doing off-screen and there's a lot of writing work and a lot of direction happening. So yeah. क्या विशेष देना चाहेंगे आप रोहित इज़ अ वेरी स्पेशल फ्रेंड हम KTV से साथ में हैं एक्साइट होते हैं उसके जितने बर्थडेज होते हैं दे ऑलवेज वेरी ग्रैंड एंड इज़ अ वेरी 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 डियर फ्रेंड एंड आई हैड टू बी हियर इनफैक्ट मैं मुंबई में नहीं थी लेकिन आज खास उसके लिए यहाँ आई हूँ और मुंबई पहुँची हूँ फॉर हिज स्पेशल डे एंड स्पेशल इवेंट आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट लॉट्स ऑफ लव हैप्पीनेस लॉट ऑफ गुड हेल्थ एंड लॉट्स मोर सक्सेस all the best to him. Yes, today's concept is Back to Future. It's more like Met Gala. It's more louder. It's more vibrant and more louder. So obviously मेरी जो डिज़ाइनर है वो काफ़ी लाउड बनाती है आउटफिट्स बहुत बार तो ऐसे आउटफिट्स आते हैं कि मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आई डोंट वांट टू वेयर इट बट टुडे ऐसा मौका मिला है मुझे ये मौका मिला है कि मैं पहन सकती हूँ एंड टुडे आई मीन इट हैज़ टू बी कम्फर्टेबल ऑल्सो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है मेरा कम्फर्ट तो इसीलिए इट्स अ लिटिल लाउड अ लिटिल डिफरेंट एंड लिटिल मोर ड्रामेटिक थैंक यू I know this time when I saw the invite, I was pretty taken aback. I said Met Gala, oh my God, we've totally gone the Emmy way. But I think he always likes to have very boisterous shows and larger than life. And today, just when I approached the entrance only, I kind of knew that we were coming into something very fabulous. I'm sure when Parul is there, it's anyways very fabulous. But I wish him the best because it's been like, what, 15 years of coming to Rohit's events and it's every time just bigger and bigger and bigger. So I just hope he reaches the highest heights as a fashion designer can reach and I wish him all the best. Rohit is a very old friend, first of all. So congratulations to him on another show. He is somebody who likes to live life king size. He is always larger than life. And so are his shows. And I'm looking forward to what he's going to show us tonight. The word was Met Gala. So these are concepts which are brought to Indians by people like Rohit. Not many Indians know what Met Gala is. Not many people know what these terms are for. So I hope that a lot of people get to see what he actually is going to bring to you. So I'm also very excited, very eager to see. So congratulations to Rohit.
So this is the first time I am attending his show. I'm really super duper excited for his show. I'm a great fan of his work and looking forward to some amazing fashion pieces over there. एंड मैम इसके अलावा बिग बॉस में आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, चर्चा हो रही है। उसके लिए मेरे ख्याल से सही इंसान जो इसका आंसर दे सकता है, दैट्स माय मैनेजर रुपेश। रुपेश जी प्लीज लेट देम नो क्या है बिग बॉस का। वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा देखने के लिए। पर अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, आपने देखा रहेगा शो, किसको ज़्यादा फॉलो कर पा रहे हो आप? अभी तो मैं इतना, मेरा शूट चल रहा था तो मैं इतना एपिसोड टू एपिसोड फॉलो नहीं कर पाई, बट आई थिंक निमृत इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग कंटेंटर। एंड व्हाट वुड यू वांट टू से अबाउट अब्दू? काफ़ी अच्छा अमेजिंग गेम खेल रहे हैं। हाँ, ही इज़ वेरी क्यूट। आई थिंक उनका क्यूटनेस ही उनका बहुत बड़ा फैक्टर है जो विनिंग ऑल द हार्ट्स। एंड या थैंक यू। थैंक यू सो मच। बस मैं आ गई। आई जस्ट फ्लोन डाउन फ्रॉम दुबई ओनली फॉर रोहित। I've done it for him because he's very special. Special because बहुत सारी चीज़ों की वजह से। एक हमारा बहुत कोर ग्रुप है किटी कैट्स, तो ही इज़ वन ऑफ द कोर मेंबर्स एंड उससे ज़्यादा आई लव हिम अ लॉट। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल डे because it's his birthday and I would definitely make it and I'm really looking forward to Black to the future. Thank you. Both are wearing black, looking very good. What do you want to say, sir? एक्चुअली ये मेरे लिए थोड़ा नया एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं शायद मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट कोई फैशन शो कब अटेंड किया होगा। सो एक्सपीरियंस नहीं है यार ऐसे शोज़ का। बट रोहित हमारे बीच में बातें स्टार्ट हुई और उसने बहुत बुलाया और बताया। मैंने उसको बोला कि यार आई एम नॉट कम्फर्टेबल, बट उसने बोला कम लेट्स सेलिब्रेट माई हिज बर्थडे एंड हिज शो। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स यार विल बोथ कम। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और एक्सपीरियंस तो जाके पता चलेगा कैसा लग रहा है। इसके अलावा कल ही आपने एक और हिट गाना दिया है लोगों को, इतने सारे तोहफे देते हो एक गाने, क्या कहना चाहोगे, किस तरह के रिस्पॉन्स आए ये गाने? अच्छा आ रहा है यार, मतलब सजना का रिस्पॉन्स मुझे थोड़ा सा मैं सरप्राइज़ हूँ कि कि मुझे लोगों, क्योंकि आपको समझ में आता है कि आप जब आपके मैसेजेस आने लगते हैं आपको और आपको लोग बधाई देने लगते हैं तब आपको समझ में आता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो गाना इंडी पॉप है और मैंने गाया उस गाने को। आई एम नॉट अ कंपोजर, मैंने सिर्फ सिंगिंग का पार्ट अदा किया है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, हाउ डू यू अप्रिशिएट सर? ऑब्वियसली हर गाना अप्रिसिएशन है अपने आप में, तो मुझे तो हर गाने अच्छे लगते हैं और जो कल आ रहा है वो मैं भी एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए, तो देखते हैं। थैंक यू सर। क्या कहना चाहोगे, आपके खास मित्रों का आज बर्थडे? ये भाई इसने बिग बॉस में मेरा बिग बॉस में आपको पता ही है कितना खास था मेरे, लेकिन बाद में बहुत खास हो गया। लव हिम रोका था KRK को, देखा तो उसने KRK इसके चक्कर में पीटा था। लेकिन द थिंग इज़ के रोहित बहुत बढ़िया इंसान है और बहुत मेहनत करता है, तो हम हमेशा उसको सपोर्ट करने के लिए भैया तो जाना पड़ता है भैया। इसके अलावा आज रैंप वॉक है, आप कितना एक्साइटेड हो रैंप वॉक के लिए? बहुत अच्छा, बिकॉज आई थिंक बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े बनाता है अलग अलग टाइप के, एंड उसका रैंप वॉक स्टार्ट हो गया था, मिसिंग इट, आई मस्ट गो फास्ट। शो के बारे में बताइए जो शो आ गया 12 तारीख को आ गया हमारा बहुत ही तगड़ा शो, सोशल मीडिया बच के रहना रे बाबा, और 20 तारीख को आ गया जय श्री राम रामायण। तो 2 शो बैक टू बैक, तो मेरा दिमाग तो घूम रहा है डायलॉग बोल बोल के, एक तरफ बोल रहा सब उल्टे पुल्टे के भैया सोशल मीडिया क्या होता है, दूसरी तरफ जय श्री राम। एंड इसके अलावा साजिद खान पे राखी जी, सलीम जी का काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, आप क्या कहना चाहोगे? साजिद सर को आपने काफ़ी बचपन साजिद सर को मैं बचपन से जानता हूँ और साजिद सर अपना भाई है, उसके साथ मैंने काम किया, हाउसफुल 1, हाउसफुल 2, हिम्मत वाला, बहुत पिक्चर में काम किया है। तो अब मुझे जाने दो, ये देखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये आ गए मैडम आ गए, अब इनको पकड़ो, मुझे जान दो। Well, actually I'm already काफ़ी late है, so I am just gonna rush inside. But happy birthday, and I wish him all the love and luck and success in the world. Coming. अशनूर आ रहे आजा जल्दी आजा, इसको भी पकड़ना। नहीं वो ऊपर है। अच्छा हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? रोहित का बर्थडे, हम उसे विश करने आए हैं, उसे ऑल द बेस्ट कहने आए हैं। आई थिंक ही इज लॉन्चिंग हिज न्यू कलेक्शन टुडे एंड वी आर रियली एक्साइटेड कि हमें नए कपड़े कब पहनने को मिलेंगे अच्छे अच्छे। रीम जी, इसके अलावा बिग बॉस आप कितना फॉलो करते हैं?
मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई हैव बिन ट्रैवलिंग। मैं छोटी सी ब्रेक पे थी तो मैं बस घूमने में इतनी मगन थी, मैं टीवी फॉलो नहीं कर पाई, बट अब वापस आई हूँ तो करूँगी। मैं बिग बॉस बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ। इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? Well, break पे थी as I said. Now that I'm back, so yes, there will be announcements and you guys wait for it. सीजन 2? Season 2? Well, I guess for that you have to go to Colors और आपको Colors को full spam करना पड़ेगा फना Season 2 के लिए, तब जाके हमारा Season 2 आएगा. But if not फना Season 2, I am sure that हम इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट में काम जरूर साथ में करेंगे. So stay tuned. Thank you. I mean, one word. too short, I would say. Yes, yes. Tell. It was too short for sure. I think we would have all loved to see her more. I think there was way more to show that she had to offer, but unfortunately, Big Boss decided differently. How do you agree with this? Yeah, of course it was too short. मुझे और लंबा वहाँ पे रहना था और बस मैं जान ही रही थी गेम के बारे में और तब तक unfortunately मैं गेम से बाहर आ गई. जब मैं बाहर आई तो obviously when I met him, the first question I asked him how was I. So he really loved me in the show and उसके बाद जो भी comments वगैरह आया fans के पास से, it was quite positive and quite encouraging. So maybe journey बहुत ही कम था, short था, but remarkable and memorable है. और श्रीजीता जी, आपको नहीं लगता कि टीना से अगर दोस्ती हो जाती तो जर्नी थोड़ी बड़ी हो जाती है आपकी? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है और दूसरी बात मैं उसके साथ कभी दोस्त बन ही नहीं सकती हूँ क्योंकि हम कभी दोस्त थे ही नहीं. बिग बॉस ने भी ट्राई किया था. मैम टीना और शालिन का काफी फेक लव चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? इनसाइड डाउन चल रहा है, उनको लग रहा है कि वो फेक लव स्टोरी चला के शायद आगे तक बढ़ सकते हैं. बहुत कमज़ोर खिलाड़ी है शायद दोनों, तो उनकी कमज़ोरी छुपाने के लिए शायद दे आर प्लेइंग द फेक ट्रायंगल, फेक एंगल. बिग बॉस के अंदर सिंबुल जैसे कंटेस्टेंट है जो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने काफी कुछ किया था फर्स्ट वीक में. यस किशन, हाँ पूछ ले. हाँ, फर्स्ट वीक में आप हुआ था, क्या कहना चाहोगे? आप आउट हो गए लेकिन सिंबुल जैसे कंटेस्टेंट कुछ नहीं कर पा रहे. मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभार जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है आपके साथ और जो हुआ है वो हुआ है.